Okay, hi Rukman, how are you? Fine, ma'am. Fine, you come from which city? Mandsaur, Madhya Pradesh. Okay, and what is the meaning of the name Rukman? Rukman, this name is derived from. Can I speak in Hindi? Up to you. Yes, ma'am. मैम रुकमन मतलब रुकमनी वर्ड से डिराइव किया गया है. रुकमनी लॉर्ड कृष्णा की वाइफ, उससे मेरा नाम, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को ये नाम दिया. So you're a spiritual person? To a little extent, I am spiritual. To some extent, right? Yes, ma'am. Okay, Rukman, just start with your introduction. I want to know about you, the background. I am Rukman Patidar. I am from Mandsaur, Madhya Pradesh, which is city of Lord Pashupatinath and also famous for opium production. I did my early education from my native place itself. Then I moved to Indore, the cleanest city of India, for my higher studies. I pursued BA LLB honors from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. My hobbies include dancing, cooking, and to talk to elderly people in my free time. I pursued course on intellectual property from World Intellectual Property Organization, and I also received a scholarship from Government of Madhya Pradesh on a scheme called Medhavi Chhatra Protsahan Program. Okay, great. So Rukman, any of the co-curriculars you are into? Sorry, ma'am. Co-curriculars, you do any co-curriculars? मैम स्टडी का ही इतना ज्यादा रहता था कि ज्यादा एक्टिविटीज परस्यू नहीं करी. What is the reason you moved to law, like BA, LLB and all that? मैम शुरू से बचपन से ही मेरे अंदर ये था कि मेरे को अपने संविधान के बारे में जानना है. तो जब जैसे जैसे आगे स्कूलिंग हुई तो पता चला कि इसमें करियर बनता है, मतलब हम LLB वगैरह करके और अब लॉ में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं. तो फिर मैंने लॉ परस्यू करने का डिसाइड किया. Okay, what is your vision in life? विजन टू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो अपना 100% देना है और पर्सनली भी सेटिस्फेक्शन रहना है और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी है. Okay. Rukman, do you believe in hard working or smart working? मैम बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत. जब जब जो चीज रिक्वायर होती है, जहाँ हार्ड वर्क की जरूरत है वहाँ हार्ड वर्क भी करना चाहिए और स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. So you might have heard your donkey is an animal which is considered like we could consider it foolish, right? Yes, ma'am. But it is the most hardworking animal. So why it is named as foolish and all that? मैन ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी यही रही है कि सबसे पहले अपने आप को इंटेलिजेंट समझना और कोई भी जानवर हो उनको अपने आप से कम मूल्यांकन करना. पर ऐसा नहीं है, डोंकीज भी हार्ड वर्क करते हैं, पर इंसान ने उनकी हैबिट उनको धीरे धीरे ऐसा ही डेवलप कर दिया है कि अब वो समझना छोड़ चुके हैं और उनके ऊपर जो चीज लाद दी जाती है वो करने लग जाते हैं. रुकमन, ऐसी क्या 3 क्वालिटीज है आप में दैट मेक्स यू डिफरेंट कि अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो आपको चूज किया जाए नॉट अदर पर्सन? मैं कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, लास्ट मोमेंट तक टिके रहना किसी भी चीज को करने के लिए, और हार्ड वर्क. Hard work. If you have to choose one word for your personality, sirf one word, what will be that word? Cooperation and coordination. One word? These are 2. Ma'am, it's cooperation. Cooperation. How you can just tell me any of the background like scenario why you're choosing cooperation, where you cooperated, what happened actually? Yes, ma'am. हमारे कॉलेज में 5 ईयर की लॉ डिग्री में 10 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट के लिए असाइनमेंट अलॉट होते थे और उस पे ग्रुप बनते थे. 120 स्टूडेंट में डिफरेंट अप्रोक्स 20 ग्रुप बनते थे हर सब्जेक्ट के लिए. तो उसको मैं हेड करती थी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए. स्टूडेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उनको किसी भी चीज से रिलेटेड समस्या हो, सारे सब्जेक्ट के लिए वो मैं हेल्प करती थी. तो ये लीडरशिप क्वालिटी आती है इसमें, कॉपरेशन नहीं आएगा इसमें. You are more into leadership because you got into that projects, you helped them out. So that is the leadership one, right? Cooperation कैसे होगा? मैम स्टूडेंट के बीच में बहुत झगड़े होते हैं कॉलेज में कि ये मेरा पार्टनर बनेगा. It's the work of a leader only, team leader, to unite them, to do work with them, right? Okay. So Rukman, you were talking about your hobbies, like you want to talk to elderly people, right? Yes, ma'am. How much time do you spend every day on this hobby? Whom with it? मैं इवनिंग में वॉक पे जाती हूँ. इवनिंग वॉक में तब मोस्टली मैं एल्डरली पीपल के साथ ही वॉक करती हूँ और उन लोगों से बातें करना पसंद करती हूँ. अप्रोक्स 30 मिनट इच डे. ओके, सो इट इज लाइक आपको रोज आप 30 मिनट्स इन्वेस्ट करते हो इस हॉबी पे, राइट? ओके, ग्रेट. So, Rukman, can you just tell me one more thing about you? Like, you want to contribute towards our country, you want to be in the legal aspects, right? So, आज तक आपने कभी कोई contribution किया है? Yes, ma'am.
तो कुछ लोगों को अवेयर करने के लिए, जैसे चाइल्ड लेबर में जो काम होते हैं उन बच्चों को पता ही नहीं होता है, वो होटल में काम करते हैं, कि उनके राइट्स होते हैं कि 14 साल से कम के बच्चे होटल में काम नहीं कर सकते। मैंने 3 से 4 जगह से बच्चों को समझाया है, वहाँ के दुकानदारों से भी बात करी है, तो उन्होंने उस चीज को वो किया है। उसके अलावा महिलाएं होती है, वो ज्यादा शिक्षित नहीं होती हैं, तो उनके राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होती है, और उनका लोग शोषण भी करते रहते हैं और वो टॉर्चर करते हैं, तो वो नहीं समझ पाती है। तो मैंने कुछ हद तक हेल्प की है। You told one thing, opium, right? Key starting in your introduction, that your city is well known and there is a great production and all that. You know the ill effects and good effects of opium? Yes. What, ma'am? What are the ill effects and what are the good effects of opium? यस मैम, ओपियम के गुड इफेक्ट्स में इसका यूज मेडिसिन के रूप में किया जाता है। ये दर्द निवारक एक औषधि है। जब मरीज को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन के टाइम पे, या लूज मोशन क्योर करने के लिए, या कोई भी स्लीप से संबंधित प्रॉब्लम के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका एक बैड इफेक्ट ये है कि जब एक्सेस में ड्रग के रूप में लोग इसका यूज करने लग जाते हैं तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है और कई तक इफेक्ट होते हैं। So how is the, like, you know, like states like Punjab and all that, they have lots of drugs consumption and all that, right? So आप अगर इस चीज में हो तो how would you try to save that city and how would you spread awareness? मैम, कुछ लोगों का शौक रहता है किसी चीज को ड्रग के रूप में लेने का, पर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ठीक है कि आप कभी कभी यूज कर रहे हो। अगर आप रोज यूज करोगे तो कोई भी चीज आपकी आदत बन जाती है और वो खतरनाक होती है। तो सबसे पहले उनमें अवेयरनेस जगाने की जरूरत है कि आप यूज करो, क्योंकि हम किसी को पूरे तरीके से तो नहीं रोक सकते, पर आप लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करो। और ओकेजनल उसका यूज ठीक है, हमेशा के लिए ठीक नहीं है। और उसके जो इल इफेक्ट है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि इससे आपको ये साइड इफेक्ट होंगे, तो लिमिटेड यूज करो। Okay. Rukman, just end on a note, like something you would like to ask. मैम, मेरी बॉडी लैंग्वेज पे मेरे को कितना वर्क करना है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत पूछना है। मतलब मेरा आई कांटेक्ट सही हो पा रहा है या नहीं? That is all in the feedback that I just wanted to ask कि इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यू पूछता है तो आप क्या पूछना चाहोगे? अभी तो मैंने फीडबैक आपको दिया ही नहीं, like what are the lapses in you? Your body language, your speed is very fast. Very means very fast, right? You have the potential, you're a very bold person, right? To speak facts आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, लेकिन वो इतनी स्पीड में एक्सप्लेन करते हो कि बंदा होगा कि भाई उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, whenever you speak something, थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा बोलते हैं, अपने जब पॉइंट्स को रखते हो ना, एक एक पॉइंट के बाद पॉज लेते हैं, ये नहीं उसको धमाके के साथ बोलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। Then is your body language you talked about, that is all lagged, है ना? कोई हमारे expressions नहीं है, facial expressions एक ही swing में चल रहे हैं। कोई आप किसी जगह पे अगर आपसे मैं कोई प्लस पॉइंट पूछूं, नेगेटिव, you don't smile, you don't interact. We have a body language. Girls do smile in between, girls do interact in between. Rukman is like nothing, I don't want to do anything, है ना? तो वो इंटरेक्शन के बेसिस पे अभी बहुत लैप्सेस हैं। उसके बाद आ जाता है, इसके लिए पता क्या करा करो, मिरर के आगे प्रैक्टिस करो, खड़े होके ना मिरर के आगे, या अपनी छोटी छोटी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स बनाओ। ठीक है, रिकॉर्ड योरसेल्फ अपनी। जब हम खुद की वीडियोस बनाते हैं ना, तो वही नो कि हम यहाँ पे गलत है, वहां पे गलत है, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो उस तरह से अपनी वीडियोस बनाओ कि मैं यहाँ पे स्माइल करके स्टार्ट कर सकती थी यार। कब किसी को ग्रीट करते हैं तो वी डू इट विद अ स्माइल, है ना? गुस्से से तो नहीं करते हैं। सो इट इज द सेम वे, आप अपना एक इंप्रेशन दे रहे हो। आप इंटरव्यू से कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू? जब मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, लाइक मैं उस टाइम पे आपको सिखा नहीं रही होती हूँ, right? Whenever I'm speaking, I'm not trying to explain you something. I'm just trying you to give the simulation. If you were in the interview, how would you react over there? Like they ask you, Rukman, you want to ask something? Rukman, you want to speak something to us? You want to know anything of our department? You have any legal questions, something regarding awareness or something what we are doing? ठीक है, तो उनसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ये थोड़ी पूछेंगे कि मैम ये बता दो क्वेश्चंस की मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। You can't say like that. No. The moment I say that, Rukman, I'm going to provide you the feedback, that time I'll start over there. Okay? ठीक है, तो अभी जो वर्क करना है, the things I like in you is that you're very bold and your answers were very good. Okay, content अच्छा था, पर presentation अच्छी नहीं थी, अभी स्पीड ज्यादा थी उसकी। उसके बाद आपका facial expressions नहीं था। अगर आपको किसी चीज को कभी पॉइंट प्रूफ करना है, मैं नहीं बोल रही हाथ हिलाओ बार बार, ठीक है, बट यू हैव सम काइंड ऑफ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट आउट, तो कुछ अपने इमोशंस करके दिखाया करो, इंटरेक्टिव हो थोड़े से। ठीक है, कि दूसरा इंसान आप में इंडल्ज हो जब बात करना चाहता है, ये ना लगे उसको कि यार ये क्या है, बोर्ड, इट्स काइंड ऑफ अ बोर्डम। ठीक है, हाथ थोड़े से मतलब मूव हो सकते हैं ना? हाँ, you can, but ये नहीं बहुत हर बात पे नहीं, when there are some kind of a legal assumptions you're trying to explain something, that time, है ना? If I ask you, ma'am, 3 factors, okay ma'am, 3 factors which I considered myself, अब मैं इसको बार बार हर क्वेश्चन में नहीं लाऊंगी ऐसे ऐसे करके।
just on the sticks, ma'am, first, second, and third, like something. The way you are trying to memorize कि मैं आपका क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, मैं मूव कर रही हूँ. जब आपने पॉइंट से नहीं पॉइंटर में आप मूव कर सकते हो हैंड्स को, ठीक है? बार बार नहीं हैंड्स मूव कर, ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am.